Okay, question number 6, exercise 26A. Question number 6. It says, in each of the following, find the coordinates of the point whose abscissa is the solution of the first equation and ordinate is the solution of the second equation. So basically what you have to do in this question is find the value of x and y. You have to solve those equations and find the value of x and y. See, what is the first equation? 3 minus 2x equals 7. How to solve this? I'll shift the 3 here. So minus 3. So this is 4. X is minus 2. 4 upon minus 2. So x is minus 2. Done. बस इतना ही था. Abscissa means x is the solution of the first equation. And second equation is, yes, if any doubt you can ask me. This will be 5i upon 2. We will shift this 1 on the right hand side and minus 5i upon 2 on the left hand side. So this will become plus 5i upon 2. When I take the LCM here, I will have 4y plus 5i upon 2 equals 9. Correct? So this will become 9y upon 2 equals 9. So y is 2 will get multiplied and this 9 will get divided. So y is correct. Did you get the same answer? 2. This was question number 6. For the next question, we will need the graph book. Acha, wait, there are 2 more sub questions. No, sorry. Sub question 2, sub question 3. Okay. All both are same. We have to just solve the equations and find the answer. So do it quickly. I will also do it on the board. You can check your answers from here. So question 2, A is 6, right? Who is that? Sorry. So cross multiply, 15 3s are 45 minus 12b equals 14b minus 7. So 7 will come here, 45 plus 7 equals 14b plus 12b. So this is 26b, 52, b is 2. Solve, solve.
axis, x-axis. Last answer of y is 4 upon 5. Yes. Yes. After this, you will need to take out your graph books. Yes. So question number 7. On a graph paper, draw a central line, y-axis, then a horizontal line in between as x-axis. Number it. बॉक्सेस की बात कर लो ऊपर से 6 बॉक्सेस करेक्ट वाई भी इरेज नो वेट वेट हां बराबर यहां पे Now, once you write the points, the question says in each of the following coordinates,
of the three vertices of a rectangle ABCD are given, means there is a rectangle which will come here. उसके तीन vertices question में दिए हैं, ठीक है? तीन vertices A, B, C for example, first case. By plotting the given points, find in each case the coordinates of the fourth vertex. मतलब fourth vertex क्या होगा वो आपको बताना है. See, I'll tell you. First coordinate क्या दिया है? A is 2, 0. 2, 0 means it is on the x-axis. 2, 0, y0 है मतलब point x-axis पे, तो ये point है 2, 0. ठीक है? Then second है, यहाँ पे लिखना पड़ता है ना, A is 2, 0. Then second है, देख लो एक बार 8, 0, तो ये भी x-axis पे होगा 8, 0. 8, 0. So this will be 8, 0. And C is 8, 4. तो x पे 8, y पे 4, तो इधर आएगा कहीं पॉइंट समवेयर हियर, इधर 8, 4 C. अब मुझे बताओ मैं इस पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करूं तो ये रेक्टेंगल कैसे बनेगा? Sir, 0 and 4. 0 and 4. 0 and 4 means here. 0, sir. 0, 4 तो x axis पे 0 y axis पे y एक्सिस पे 4 मतलब इधर. Sir, 2 and 4, 7, sir. देखो पॉइंट क्या बनेगा? करेक्ट. ये एक पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो रेक्टेंगल बनेगा ये ऐसा. करेक्ट. तो यहाँ का पॉइंट मिसिंग है ये वाला, तो ये पॉइंट क्या होगा? 2, 4. So your point B will be 2, 4. This is your answer. अंडरस्टूड? पहले 3 पॉइंट्स बनाओ, उसको प्लॉट करो. Yes, you have to plot and मतलब थोड़ा लाइट फिगर बनाना. ऐसा शेप बनाना है. और वैसे तो ठीक है, जिन्होंने बना दिया ठीक है, लाइट एकदम प्लॉट कर दो बिकॉज दैट इज द वर्किंग यू आर डूइंग. ऐसे सारा डार्क मत बनाना बिकॉज अब क्या है, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस है वो भी इसी ग्राफ पेपर पे कर दो, अलग से ग्राफ पेपर लेने की जरूरत नहीं. सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर डू द नेक्स्ट 3 करने की जरूरत नहीं है. एक काम करो, 4 में से 2 करते कोई भी. फर्स्ट हमने कर लिया, अभी थर्ड कर लेते. डू द थर्ड वन, सब क्वेश्चन 3, क्योंकि बाकी दोनों सेम है. सब क्वेश्चन 3 इसी ग्राफ पेपर पे कर दो. सब क्वेश्चन 3, a is -4 -6, x पे -4, y पे -6. Somewhere point is here. Then 6, 0. 6, 0 means the point will be on 6, 0. x-axis. Point will be on x-axis on 6. तो इधर ओके, तो A मिला और C मिला. दिस इज A, दिस इज C. फिर क्या है थर्ड पॉइंट D, -4, 0. तो किस पे होगा ये -4, 0? क्यों y एक्सिस? x एक्सिस पे ही है ना, बिकॉज y 0 है, तो -4, 0 मतलब इधर. ठीक है, तो अभी ऐसा फिगर बन रहा है 1, दिस इज 2 लाइन. तो अभी और कैसे कंटिन्यू करूँ इसको? ऐसे और ऐसे. ठीक है, तो आई हैव टू सी व्हिच पॉइंट दिस इज. तो इसको ये ऐसा कंप्लीट होगा तो इट विल बिकम अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट होना चाहिए फोर्थ मतलब सी देखो उन्होंने A, C और D दिया था इस बार, तो जो आपको पॉइंट मिलने वाला है दैट विल बी पॉइंट B. फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट. दिस वाज द मिसिंग कोऑर्डिनेट. इफ आई सी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ये x में 8 है, y में -6 है,
So the point is 8, minus 6. सर माइनस 6 का माइनस 6 होना चाहिए ना, वो सी था. अच्छा हाँ सॉरी. ओके ये वाला पॉइंट नहीं था, ये वाला पॉइंट था हमारा सी. तो यहाँ से नीचे इसको मार्क मत करना. बी 6, minus 6 करेक्ट. ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, ये ऐसा. अंडरस्टूड. बाकी तो सब क्वेश्चंस कर लोगे. No, not now. Do it later when I give for homework. The same ही है ना. So let's do the next question. अभी क्वेश्चन नंबर 8. ये भी अगर आपका ग्राफ पेपर नीट है तो इसी पे कर लो. क्वेश्चन नंबर 8 भी. बिकॉज वापस न्यू ग्राफ पेपर बनाओगे, वापस उसमें पॉइंट्स लिखोगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. 8 क्या दिया 8 क्वेश्चन में? रीड करो, खुद रीड करो. ABC are vertices of a parallelogram. By plotting the given points on the paper, find the coordinates of the fourth vertex D. But this time it is a parallelogram. Okay, it is a parallelogram this time. So plot the vertices A, B and C first. A is minus 2, 2. -2 और y में 2 है. So इधर आएगा पॉइंट. x में -2, y में 2. -2, 2. Then 8, 2. Eight, 2 will be here. Then 4, -4. X पे 4, y पे -4. So the point will be somewhere here. So what we need? So parallelogram will be from here. Yes. So अभी क्या करें? इसे ज्वाइन करना पड़ेगा. ये कहाँ तक है? कौन सा पॉइंट ये? सर ये वो -2 ये था ना पॉइंट. हाँ. 8, -2. तो यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा. बरोबर. जैसे ज्वाइन होगा फिर ये कुछ ज्वाइन होगा ऐसे. No sir. No, So sir. first Sir, one is A -2. सॉरी. ये पॉइंट तो है ही ना, पिछले सम का पॉइंट है ये. Sorry, this is the point. So I will join these two lines. Now you see that we have to draw another line here, which will complete this parallelogram. ठीक है. अब वो लाइन कितनी दूर बनाए, कैसे बनाएगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? देखो, यहाँ पे ये जो पॉइंट था और ये जो पॉइंट था, इनके बीच में कितना गैप है? कितने बॉक्सेस का गैप है? 2 बॉक्सेस. सी ये 4 पे है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट 8 पे. सो 2 बॉक्सेस का गैप है, 2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस का गैप है. ठीक है. वैसे ही जो यहाँ पॉइंट है ये किस पे? 2 पे है. तो 2 बॉक्सेस के गैप के बाद दूसरा पॉइंट 6 पे होगा. ओके करेक्ट. तो यहाँ पे होगा वो पॉइंट. समझ रहे हो मैंने कैसे पॉइंट की लोकेट किया? वैसे आप डायग्राम देख के भी लोकेट कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो. आप एक स्केल ले लो. ठीक है. स्केल को यहाँ रखो एंड स्केल को मूव करो ऐसा इस पॉइंट तक. समझ रहे हो? पैरेलल लाइन है ना. तो यहाँ पे स्केल रखा और स्केल को ऐसे मूव किया. तो ये कहाँ पे आया? ये पॉइंट इधर आया. एग्जैक्टली वो उसके नीचे ही आएगा प्रॉपर. आपका जो 6 होगा ना जहाँ पे भी -4, -2, -6 ऐसा आपका पॉइंट. व्हेन यू कीप द स्केल लाइक दिस एंड ड्रॉ पैरेलल लाइन लाइक दिस, इट विल ऑटोमेटिकली रीच हियर ऑन 6. ऐसा भी कर सकते हो. फिर आपको देखना है कि ये टिल्ट कितना है लाइन, बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम. सेम टिल्ट होगा दोनों का ऐसा.
This is how your diagram will be. You got? Yes, I got it wrong. I did minus. हाँ. So this is what I was saying. See, B यहाँ पे है, C यहाँ पे. There is a gap of 2 boxes here. So A यहाँ पे है तो B will be here. नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है. देखो ना, ये जितना टिल्ट है ना, उतना ही यहाँ पे भी टिल्ट आना चाहिए. ऐसे रखो आप. Place this area like this and move it. इसको move करो पीछे. करो और करो. ये पॉइंट तक लेके जाओ. ये वाले पॉइंट. हाँ. कहाँ पे आ रहा है? रफली. चलो. बाकी के लोग इसलिए कर सकते हैं अपनी होगी क्या बाकी के? दो जब होगी उसमें हाँ कर देंगे. बस जब तक जितने फिट कर सको उतने कर देना. So D will be -6 -4 ना? Yes. रॉन्ग है इसका. हाँ देखो ना, ये जो प्लेट है ना, ये देखो ये ऐसा है इसकी. वो like this. यहाँ पे आना चाहिए. So what is the three boxes? जो वैसे दे रहा है. 3 किधर हुआ? किसे 3 काउंट किया आपने? 1, ये 2 और ये 4. नहीं ऐसे भी मत काउंट करो. काउंट इट हॉरिजॉन्टली. मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप है. ओह, अच्छा. ये इतना विड्थ आप यहाँ पे भी देख लो. ओके, तो इधर भी 2. अच्छा ठीक है समझा. Yes, you can do that. That is also a good idea. Yes, you can do this also. Just because the opposite sides of parallelogram are equal. Okay? तो ये कितने बॉक्सेस है काउंट कर लो यहाँ से यहाँ पे. शायद आपके 4 बॉक्सेस आएंगे. कितने आ रहे हैं? So 4 half hours है. 5 बॉक्सेस आ रहे हैं. 5 मतलब 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ रहा है ना. ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लो. ये डिस्टेंस ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है. तो सेम डिस्टेंस यहाँ पे भी ले लो. वो भी इजी तरीका है करना. सेम डिस्टेंस आ रहा है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. डन. ओके. Let's do the next one. So now the other question to Also from the same graph. Acha, also from the same graph, state the coordinates of the midpoints of the side AB and CD. किधर है AB? This was B ना? 8,2 is B. Yes. This is C and this is D. Okay, D के coordinates आपने लिखे ना? -6,6 ये आपका आंसर था I guess. -6 or -4. -6, -4. Coordinates of D. ठीक है, ये आपका एक आंसर हो गया. सेकेंड पार्ट में they are asking you to find the midpoint of AB and CD. तो midpoint आप देख लो, इसका मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है. तो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है आपका? वो देख लो. 5 will be on 3 I guess. यहाँ पे होगा कहीं पे. Yes. Yes, sir. 3,2. तो 3,2 है coordinates. कुछ नाम बोला है उसका? नहीं, नाम नहीं बोला है. So this is 3,2 AB का midpoint. And here 4, 5. Here will be this. So this will be -1, -4 I think. Midpoint. सर इसका Yes, sir. AB का midpoint and CD का midpoint. What happened? नहीं समझा. See, you read the second part of the question. There is the second part. No. This part. This we have already done. We found the vertex D. This is your vertex D. Name it D here. मुझे नहीं हाँ, name it है. इसको भी name करो यहाँ पे D नाम लो. And name this as A, B, C, and D. Okay. Now find the midpoint of AB. How do you do that? So this is 10 centimeters. The midpoint will be here. This is your vertex. This is the midpoint of AB. It's right here. Midpoint of AB. This is vertex.
So write like this. First we will write the answer as D as minus 6 minus 4, the first part का answer. Then midpoint of AB, तो vertex लिखना है यहाँ पे, क्या मिल रहा है 3,2. Midpoint ऐसा लिखना पूरा. Of CD, क्या vertex मिल रहा है -1, -4. स्केल से करना अच्छे से समझ में आ जाएगा, स्केल से. Midpoint of now if your graph is has some space, you can do the next sum here, or you can make a new graph, up to you. I am making a new one. You can continue as per your wish. In the exam, if two sums come, you have to do it on different graphs. Okay? Exam में different graphs से करना पड़ेगा. यहाँ पे ठीक है. Okay, next one. So again ABD are the vertices of a square. So तीन vertices दिए square के, correct? तीन vertices दिए square के, A, B and A, C and D. तो B हम ढूंढ सकते हैं. पहले A को plot करते हैं. -2 and 4. -2 and 4. So somewhere here A. -2 and 4. Then C is 4, 10. 4, 10. डायरेक्ट 10 दे दिया है. 4, 10 मतलब कहीं पे यहाँ पे आएगा पॉइंट. Then D -2, 10. Okay. -2 and 10 तो यहाँ पे आएगा पॉइंट. D. This is C. So कहाँ होगा इसका फोर्थ पॉइंट? इसको ज्वाइन करता हूँ मैं. So यहाँ पे बनेगा नेक्स्ट पॉइंट. यहाँ पे पॉइंट आएगा स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए. This will be point B, which is 4, -4. Vertex B. The fourth vertex B. Yes, sir, it should be 4. Oh, sorry, यहाँ पे minus. This should be 4, 4. Yes. Sir, midpoint of BC 4,7. Now we need to find the midpoint of BC. Midpoint of BC means this. ये तो midpoint ये कितना है 4 से लेके 10 मतलब 6 सेंटीमीटर. तो इसका midpoint यहाँ पे होगा कहीं 4,7. So this point is 4, 6 और 8 के बीच में 7. So this is 4, 7. Midpoint of BC.
मिड पॉइंट ऑफ CD. So CD ये कितना है? ये भी I guess this is also 6 सेंटीमीटर. तो उसका सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा. When you trace this point below, it will be between 0 and 2. 0 and 2 means it will be 1. So this is 1, 10. Midpoint of CD, 1, 10. So next is 1,7. Next, third part. Take your time, understand the points and then mark. No need to hurry. Read the question yourself, try to do it on your own. If in doubts, ask me. Wait. The coordinates of the points of intersection of diagonals of the square ABCD. So diagonals को intersect करो. Diagonals को intersect करो ऐसे. So do you have to make the diagonal? हाँ, yes, make it. So this is where the diagonals meet. So this point is 1, 7. X में 1, Y में 7. Next. Done all of you? Yes, Yes, sir. sir. Mark किया कि नहीं? किया है. Okay, in the next one, what is collinear? Collinear means collinear means never heard of the word collinear in your life before. Collinear means lying on the same line. Collinear means when the points, let's say 3 points are given. The 3 points are said to be collinear if they lie on the same line. Okay, let's say इसे 3 points बनाए मैंने and they are lying on the same line, so they are collinear. Okay, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, so they are not lying on the same line. Okay, so they are not collinear. वैसा, ठीक है? So now in the 10th question, So 3 points compulsory है. 3, 4, 5 कितने भी दे सकते हैं. 2 भी है. 2 नहीं, 2 तो हमेशा collinear ही होंगे क्योंकि उनसे लाइन पास हो जाएगी. 2 पॉइंट्स कहीं भी हो हम लाइन पास कर सकते हैं उनसे, पर 3 पॉइंट्स स्ट्रेट ही होने चाहिए, लाइन नहीं होनी चाहिए. तो 3 और more. So they have given you 3 points. Mark those 3 points and see if you are able to pass a line from those 3 points. If yes, they are collinear. 3,5, 1,1, 0,-1. So वही ग्राफ है. चलिए. As long as practice में see you can use the same graph multiple times. Okay, in the exam you have to use separate graphs. Just make sure it is neat and you are able to comprehend what you have marked. 3,5. 3,5. So they are not collinear. So they are collinear. आपके collinear क्यों नहीं है?
सीधा करो उनको। कैसा होता है एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो हमेशा इजी होता है। अच्छा हाँ कोई नहीं। That's good. So 3,5 is somewhere here. 1,1 is here, and 0, -1. 0, -1 is here. So yes, they are collinear. So I'm not ready. So if I'm trying to draw a line, then it is coming like this. Wait, which point is this? The 3, 4 combined. This is 3,4. Next one is -2, -1. -2, -1. X पे -2, y पे -1. So point will be somewhere here. Then -1, What happened? Second one? First one? आपको भी नहीं आ रहा है? ये वन क्यों वन? अरे आपने क्या गड़बड़ किया है? ये जो पॉइंट्स है आपके हाँ ये मार्क करने से मारने वाले लाल ग्राफ में लेके आ रहा तो फिर भी बनते यहाँ पे आएगा ना। हाँ वेलकम वन आएगा तो यहाँ पे ये तो बस बट ये वाला भी गड़बड़ हो गई होगी ना इसमें भी गड़बड़ So I'm not ये getting. जीरो है ये थ्री है ये भी सही है इस वाले में गड़बड़ हो गई होता है क्या था ये 0, -1 तो 0, 0 -1 y पे ये भी सही है So it is not linear. It is not linear. वो तो linear आ रहा है आपको आ रहा है linear? सर दिखा नहीं अच्छा आंसर भी linear नहीं है नीचे Fraction problem है। देखो आता है क्या हाँ, linear है। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले तो नहीं आ रहा है इनको सेकंड वाला है Second one, So first one नहीं है. फर्स्ट वाला नहीं है, टेढ़ा है. निकालो देखो. एक मिनट आपने तो पॉइंट ही गलत मार्क किया क्या 0, -1 is here एक मिनट आपका भी गलत है ये देखो 0, -1 is here ऑन द लाइन आएगा ना 0, -1 ये किसकी जिम्मेदारी है सेकंड वन नॉट कोलिनियर आ रहा है -1, -4 में फटाफट मार्क कर देता हूँ यहाँ पे आएगा पॉइंट somewhere here and -4, 1 will be somewhere here so yes ऐसा आ रहा है ना कुछ पॉइंट नॉट कोलिनियर चलो फटाफट लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वन विल बी यस सेकंड वन विल बी नो ठीक है फर्स्ट वन कोलिनियर सेकंड वन नॉट कोलिनियर 11th वन बहुत इजी है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 plot a point A 5, 7 5, -7 so the point is here 5, -7 then from the point A draw AM perpendicular
to x-axis. AM perpendicular to x-axis. So draw a straight line perpendicular to x-axis. That is M. And AN perpendicular to y-axis. So this is y-axis. So draw a straight line perpendicular to y-axis. Perpendicular to x-axis, perpendicular to y-axis. And then this is point N. We have to write the coordinates of M and N. Coordinates of M will be on x-axis it is 5, 4 और 6 के बीच में 5, and y-axis is 0 because this is on the x-axis. This point is on the x-axis, so it's on the x-axis y is 0. So this point will be 5, 0, and this point is on the y-axis. On y-axis means x 0 होता है, तो इसका x 0 है, y is -7. Read the coordinates. 0 से लेके कितना ये 7 तो साइड से This is the like this is the square. So we will find the distance between these two things by distance formula, and then डायरेक्टली काउंट बॉक्सेस डायरेक्टली सीधा कोऑर्डिनेट्स कि कितना है. इतना कुछ टेंशन नहीं है. सर साइड कैसे लिखे? साइड स्क्वायर मतलब एरिया. बस नॉर्मली स्केल से मेजर करके लिख सकते हैं ना 5 स्क्वायर. हाँ हाँ. See, question number 12. Question number 12. Square ABCD. A is 3,4. 3,4 कहाँ पे होगा? 3,4 इधर. And those who have completed can do the next sum. 3,4. B is -2,4. -2,4 somewhere here. B, A, 12th sum, this is the 12th sum. C is -2, -1, -2, -1 is somewhere here. C. Now, plot these points, find the coordinates of vertex D. तो D easily मिल जाएगा. इसको नीचे लेके आते हैं. यहाँ पे होगा D. ठीक है. So ये है 2 और 4 के बीच में this point is 3 and this point here 0 और -1. So -1 and 3 मतलब x में 3 है और y में -1 है. So this point is 3, -1 B. So your vertex B is 3, -1. बस ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोग कैसे वर्टेक्स को ट्रेस करते हो. कोई पॉइंट आपको अगर मिलता है आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. वो जहाँ मीट होगी दैट विल बी द fourth vertex. Okay. So what is the formula for area? Area. Now second part is area of square. Area of square means side square. Side का square. So direct measure करना. Now how can you ideally you should take the coordinates, two coordinates मतलब -2, -1 and 3, -1 और फिर इसको डिस्टेंस फॉर्मूला से सॉल्व करो तो आपको इसका डिस्टेंस मिलता है. ओके. बट आप नहीं भी करोगे तो भी चलता है. इतना करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ काउंट करना है कि कितने बॉक्सेस हैं यहाँ पे. ओके. आपने 2 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स लिया है मतलब आपका एक छोटा बॉक्स 1 सेंटीमीटर है. करेक्ट. बस उसमें काउंट कर लो. ये -2 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस 1, 2 देन यहाँ पे 1, 2, 3 मतलब ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है आपको. दिस इज 5 सेंटीमीटर. ओके. 2 सेंटीमीटर के 2 बॉक्सेस आ रहे हैं और एक 1 सेंटीमीटर का आ रहा है. टोटल इज 5 सेंटीमीटर. सो योर आंसर विल बी 5 square 25 square units. Write this 25 square units. Question number 13. OABC, where O is the origin. OA is 10 units along the x-axis. AB is 8 units. Find the coordinates of vertex A, B and C. I'll erase this. इसका काम हो गया.
नाउ O इज द ओरिजिन, तो पहले O मार्क कर देते हैं, दिस इज O, ये मार्क कर दिया O। फिर उन्होंने बोला है OA is 10 units along the x axis, ठीक है, OA is 10 units along the x axis, मतलब ये O है, ठीक है, यहाँ से 10 units along the x axis, तो मैं 10 यूनिट्स मतलब 2, 4, 6, 8, 10 तक है आपके ग्राफ में जगह? नहीं, थोड़ा वो लास्ट वाला लाइन यूज करोगे तो आ जाएगा ना। Yes, So sir. 10 is there. हाँ, मतलब किसी की ग्राफ बुक थोड़ी छोटी है, तो थोड़ा सा आप बाहर तक चले जाओ, एक्सटेंड कर लो ग्राफ को। ओके, तो यहाँ से along x axis 10 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स चाहिए, तो ये वाला आपका पॉइंट होगा A, दिस विल बी पॉइंट A, 10 यूनिट्स गए हम along x axis, ठीक है। Then AB is 8 units. AB is 8 units. Find the coordinates of AB. C किधर से आया? अच्छा, C भी है। नहीं, उन्होंने 8 यूनिट्स बोल दिया, पॉजिटिव ही रखा है ना उन्होंने। अगर बोलो कुछ नेगेटिव स्पेसिफाई करते उसमें, तो हम इस तरफ ले लेते 10 यूनिट्स क्वेश्चन में। AB is 8 units. उन्होंने पॉजिटिव ही रखा है, तो हम भी पॉजिटिव पार्ट ही ग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है। आप नीचे भी बना सकते थे या लेफ्ट साइड में भी, अगर उन्होंने स्पेसिफाई किया होता तो, ठीक है। सो AB is 8 units। अभी देखो AB is 8 units और कुछ दिया नहीं है ना, एंड इन अ रेक्टेंगल OABC, सी OA एंड दे आर सेइंग AB is 8 units, तो मैं अभी किस डायरेक्शन में बनाऊं AB को? ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे नहीं, नीचे नेगेटिव हो जाएगा वो, ठीक है। और रेक्टेंगल है तो सी रेक्टेंगल विल बी लाइक दिस, रेक्टेंगल ऐसा होता है, ठीक है। तो इफ दिस इज O, दिस इज A, तो B हैज टू बी हियर, C हैज टू बी हियर, ठीक है। तो ये OA, अब B 8 यूनिट्स, तो यहाँ से 8 यूनिट्स ऊपर इधर तक आएगा मेरा पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी B, ये 8 है यहाँ पे। दिस विल बी B, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 10, 8, 10,8 कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके B के 8 यूनिट्स। अब ये O है, ये A है, ये B है, तो C कहाँ होगा? ये C होगा। टू कंप्लीट द रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए यहाँ से स्ट्रेट लाइन, दिस पॉइंट विल बी C, 0,1. विच विल बी, ये y एक्सिस के ऊपर है, तो इसका x 0 होगा और इसके y 8 है, सो दिस पॉइंट C इज 0,8। समझ रहे हैं? बस हो गया सम। दिस वाज 10 यूनिट्स, दिस वाज 8 यूनिट्स। So A is 10, पॉइंट A is on the x axis, मींस इसका y 0 होगा और इसका x होगा 10,0, x होगा 10। तो A भी मिल गया, सबको लिख देना फाइनल आंसर में, A is 10,0, B is 10,8, C is 0,8। ओके, अगर उन्होंने ऐसे बोला होता तो फाइंड द एरिया ऑफ OABC, एरिया ऑफ OABC बोला होता तो 12 plus B. Sir, 12 plus B. नो, दैट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, And लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर एरिया बोलते तो 10 into 8 80 स्क्वायर यूनिट्स आता, ठीक है। अगर पेरीमीटर बोलते रेक्टेंगल का पेरीमीटर, देन इट इज 2L plus B, मींस 2 into 10 plus 8, वैसा 160. 60 नहीं 36। L plus B, L plus B, L into B। Okay, the exercise is done।
What time is next lecture? 2:15. 2:15. That's it for today.